نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بزم نشاط رنگ دو عالم پہ چھا گیا، بزم نشاط رنگ دو عالم پہ چھا گیا، جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا۔ محترم سامعین کرام اور عزیز بچوں، آج ہمارے گھر کا یہ دوسرا پروگرام ہے اور وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، اسی لیے بغیر کسی دیری کے ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی بھی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو ہمیشہ تلاوت کلام اللہ سے کیا کرتے ہیں، تو میں مزمل خان کو اس شعر سے دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب، ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب، اس پہ جان و دل میرا قربان ہے۔ مزمل خان تشریف لائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر۔ ماشاءاللہ، یہ تھے مزمل خان جنہوں نے قرات پیش کیا۔ اب اس کے بعد ہمارا جو اگلا وفد ہے، جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ ہے نعت کا، تو میں نعت کے لیے صوفیہ خان کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ محفل کا رنگ و حسن بڑھانے کے واسطے، محفل کا رنگ و حسن بڑھانے کے واسطے آ جاؤ نعت پاک سنانے کے واسطے۔ صوفیہ خان تشریف لائیے۔ ہم امید مرد مجاہد ہیں، توحید پہ جیتے مرتے ہیں، ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں، ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں۔ ہم امید مرد مجاہد ہیں، توحید پہ جیتے مرتے ہیں، ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں، ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں۔ القدس ہمارا ہے، القدس ہمارا ہے، میدان میں جس کی ٹاپوں سے بازل سے دل گر جاتے تھے، وہ امید مرد مجاہد ایسے تھے، طوفانوں سے ٹکراتے تھے، دریا سے راہ بناتے تھے، وہ ایسے قوم کے بیٹے تھے۔ وہ ہے تمہیدی بات۔ میں تمہیدی بات کے لیے مولانا عبدالواحد صاحب کو اس شعر سے دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ نہ پوچھو گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، نہ پوچھو گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتا ہے وہ۔ واحد بھائی سے درخواست ہے کہ برائے کرم آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم اور عزیز پیارے بچوں اور خواتین حضرات، آج کا یہ پروگرام گھریلو تعلیم و تربیت اس کا عنوان ہے۔ دراصل یہ جو پروگرام ترتیب میں آیا ہے، اس سے پہلے شاید ایک بار ہو چکا، یہ دوسری بار ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے سے جو چیز چاہی جا رہی ہے یا جو غرض و غایت ہے وہ یہ کہ کس طریقے سے ہمارے اندر اسٹیج پر کھڑے ہو کر اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے کی صلاحیت اچھے طریقے سے پیدا ہو جائے۔ جس دور سے ہم لوگ گزرے ہیں، یعنی جو ہمارا بچپنا گزرا ہے، وہ اس طرح کے اسٹیج سے خالی تھا۔ ہم لوگوں کو اسی وجہ سے آج بھی کچھ بولنے سے پہلے کافی تیاریاں کرنی پڑتی ہے، الفاظ کو، کلمات کو ترتیب دینا پڑتا ہے، کچھ الفاظ کو ڈھونڈ کے لانا پڑتا ہے۔ یہ جو مشقتیں ہیں
یہ دراصل یہ بتلا رہی ہیں کہ آپ نے اپنے بچپن میں یا جس زمانے میں ٹریننگ ہوتی ہے اس زمانے میں آپ ٹریننگ نہیں پائے ہیں، اس لیے آج یہ دقتیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ تو بہرحال ہم لوگ اس راہ سے گزر گئے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں اس طرح کی پریشانیوں سے نہ الجھیں، اس طرح کی پریشانیوں سے دوچار نہ ہوں۔ ہمارے بچے الفاظ کو ترتیب دینے میں یا الفاظ کے نو کو پلک کو سدھارنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ پوائنٹ کو لیں اور ان کے پاس ترتیب پہلے سے ہی ہو کہ کیسے بولنا ہے، کیسے الفاظ کے زیر و بم ہوں گے، کیسے پیش کرنا ہے، یہ پہلے سے سیکھے ہوئے ہوں۔ اس لیے اس پروگرام کو سب کے سامنے، گھر میں سب کے سامنے منعقد کیا جاتا ہے۔ سب لوگ یعنی بچے ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، سب لوگ اس پروگرام میں حصہ لیں اور اپنی معافی ضمیر کے ادا کرنے کا ہنر سیکھیں۔ الحمدللہ آج کا یہ پروگرام بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ جو تمہیدی بات ہوتی ہے وہ بڑی مختصر ہوتی ہے، صرف پروگرام کے غرض و غایت بتلائی جاتی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے غرض و غایت رکھی۔ اللہ رب العزت اس پروگرام کو قبول فرمائے اور اس مقصد کے اور جس مقصد کے لیے پروگرام ترتیب دیا گیا ہے وہ مقصد ہم سب لوگوں کے لیے بروکار لائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے واجد بھائی جو اپنی تمہیدی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھے۔ اب اس کے بعد ہمارا جو اگلا وقت ہے، جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ ہے تقریر و خطابت کا۔ جب تقریر و خطابت کی بات آتی ہے تو علامہ اقبال کا یہ شعر یاد آتا ہے کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی غلب شانی مسلم ہے زمانے میں، خطابت کی غلب شانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ تو اس تقریر و خطابت کے جو سب سے پہلے مساہم ہیں وہ ہیں مبشر خان۔ مبشر خان سے درخواست ہے کہ براہ کرم آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید، اور آج کا یہ خوبصورت موقع ہمارے گھر کے پروگرام کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اور آج میں آپ سب کے سامنے صحت کی اہمیت کے بارے میں کچھ الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر ہمارے پاس صحت ہے تو ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو کو بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں، چاہے وہ دینی امور ہو یا تعلیمی سرگرمیاں یا کھیل کود۔ اور اگر ہمارے پاس صحت نہ ہو تو عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، روزے رکھنا دشوار ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ زندگی کو اچھی طریقے سے گزارنا ممکن رہ جاتا ہے۔ ایسے دعا ہے کہ ہمیں صحت عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے مبشر خان جنہوں نے صحت کے تعلق سے اپنی بات پیش کی۔ کہتے ہیں کہ ہیلتھ از ویلتھ، if you don't have good health then you can't achieve anything۔ اگر آپ کے پاس اچھی صحت نہیں ہے تو آپ اپنی لائف میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد تقریر کے جو اگلے مساہم ہیں وہ ہیں سامیہ خان۔ سامیہ خان سے گزارش ہے کہ براہ کرم آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین اور میرے ہمدرد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر علی وقار، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے والدین کی اہمیت۔ صدر محترم اور محترمہ، والدین قدرت کا سب سے انمول خزانہ ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ جنت میں داخل ہونے والا دروازہ۔ ماں ایک بہلول جذبے اور محبت کا پیکر تو باپ خلوص و دلجوئی کا حسین شاہکار۔ عرض یہ ہے کہ دونوں ہستیاں یہ ہے کہ
उनके बिना ना तो हमारी कोई पहचान और ना ही कोई शनाख्त। सदर आली वकार, बच्चे कितने भी बुरे हों, वालिदैन उनके हक़ के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचते हैं। वालिदैन की मौजूदगी एहसास बहार होती है, उनकी खिदमत से ही सबकी कश्ती पार होती है और उनकी रज़ा से ही सबकी किस्मत पायदार होती है। दिन की रोशनी हो या रात का अंधेरा, सुबह का उजाला हो या शाम की सआतें, कोई भी मौसम, कोई भी मिजाज, कोई भी लम्हा दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके बगैर जिसमें माँ बाप की बेलौस मोहब्बत शामिल ना होती हो। हमें हर लिहाज से अपने माँ बाप की कद्र करनी चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने माँ बाप की दुआएं लें। मुखालिफ वक्त को हर बदगुमा को रोक रखा है, मुखालिफ वक्त को हर बदगुमा को रोक रखा है, हर एक हासिद की जहरीली जुबा को रोक रखा है। उतर सकती नहीं मुझ पर बाइस किसी आफत, उतर सकती नहीं मुझ पर बाइस किसी आफत, मेरे वालिदैन की दुआ ने आसमां रोक रखा है। माशाअल्लाह, ये थी सामिया खान जिन्होंने नहायत ही शानदार तरीके से अपनी तकरीर पेश की। नाज करता है ज़माना, नाज को भी नाज है, नाज करता है ज़माना, नाज को भी नाज है, तुम बुलंदी पर रहो दिल की यही आवाज़ है। और नसीहत करना चाहूँगा कि दो जहाँ की कामयाबी गर तुझे दरकार है, दो जहाँ की कामयाबी गर तुझे दरकार है, थाम ले उनका दामन जिनका मोहम्मद नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके बाद हमारे जो अगले मुसाहिम हैं वो हैं खदीजा बिन्त असजद। खदीजा खातून को मैं शेर के साथ दावत स्टेज देता हूँ कि मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़ी नाज के साथ, मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़ी नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिलाना मेरी आवाज़ के साथ। खदीजा तशरीफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने खेल कूद के साथ अपनी तालीम पूरी कर ली 5वीं क्लास तक। पूरे क्लास में अच्छा नंबर आया और फर्स्ट पोजीशन भी आई। मदरसा में असातिज़ा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तालीम बहुत अच्छी रही और मेरे वालिदैन की भी दुआएं मेरे साथ रहीं। अल्लाह करे कि इसी तरह इन सब लोगों की रहनुमाई और दुआएं मुझे मिलती रही और मैं कामयाबी की मनाजिल तय कर सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, ये थी खदीजा खातून जिन्होंने अपनी तकरीर आप लोगों के सामने पेश की। अब तकरीर के मैदान में जो आखिरी मुसाहिम हैं और यही लास्ट हैं जिनका नाम अहमद है। अहमद से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी तकरीर को ऑडियंस के सामने पेश करें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। अल फारूक एकेडमी एक अच्छा इदारा है और यहाँ उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर के साथ साथ कुरान शरीफ का हिफ्ज़ कराया जाता है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलने का भी मौका मिलता है। यहाँ के ज़िम्मेदार का नाम डॉक्टर फ़खरुद्दीन वाहिद कासमी है और ये इदारे की तालीम को लेकर बहुत ही संजीदा रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, ये थे अहमद ख़ान जिन्होंने अपनी तकरीर नहायत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार तरीके से पेश की और वो भी अल फारूक एकेडमी के बारे में जहाँ से मैंने भी तालीम हासिल की है। अब ये जो तकरीर का मैदान था, जो तकरीर के जितने भी बच्चे थे, जितने भी मुसाहिम थे, वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारा जो अगला वफ़द, जो अगला टारगेट है वो इन बच्चों का है कि इन बच्चों से इंट्रोडक्शन लिया जाए। तो इन बच्चों में जो सबसे पहले मुसाहिम हैं वो हैं सूफिया खान। मेरा नाम सूफिया खान है। मेरे अब्बू का नाम अब्दुल माजिद खान है। मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम मदरसा निसात तालीमी मरकज़ है। अब इसके बाद मोहम्मद खान से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना तारुफ पेश करें।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद खान है। मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद हामिद खान है। मेरे गांव का नाम यूनुसपुर है। मैं मदरसा निसात तालीमी मरकज़ में पढ़ता हूँ। 2वीं क्लास मुकम्मल हो गई है, 3री क्लास में जाऊँगा। मैं दीनदार घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। इंशाअल्लाह मैं हाफिज़ कुरान बनूँगा। अब इसके बाद जो अगले मुसाहिम हैं वो हैं हाजरा। हाजरा खातून तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाजरा खान है। मेरे अब्बू का नाम अब्दुल माजिद खान है। मेरा घर यूनुसपुर है। स्कूल का नाम मदरसा निसात तालीमी मरकज़ है। मैं पहले क्लास में पढ़ती हूँ। अब 2री क्लास में जाऊँगी। माशाअल्लाह, ये थी हाजरा खान। अब उसके बाद जो अगले मुसाहिम हैं वो हैं अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान खड़े होइए। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुर्रहमान खान है। मेरे अब्बू का नाम है मोहम्मद आबिद खान। बड़ा होकर मैं इंडियन आर्मी बनूंगा। गाँव का नाम है यूनुसपुर। लब्बैक मालिक ना लब्बैक हे रब्बे आदर हे रब्बे रब्बे अमर लब्बैक। माशाअल्लाह, ये थे अब्दुर्रहमान खान। अब इसके बाद आयज़ा खान, आपकी बारी, खड़ी हो जाओ। मेरा नाम है आयज़ा खान। मेरे पापा का नाम है मोहम्मद आबिद खान। मेरा घर है यूनुसपुर। अल्लाह तेरा नेसान तूरे बराते आया है वो ऐसा पूरे माशाअल्लाह, ये थी आयज़ा खान। अब इसके बाद अस्मा की बारी। अस्मा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा खान है। मेरे अब्बू का नाम अब्दुल माजिद खान है। हमारा घर है यूनुसपुर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, ये थी अस्मा खान। अब उसके बाद उमर खान की बारी। तुम्हारा नाम क्या है? उमर। तुम्हारे अब्बू का नाम? मेरे अब्बू का नाम साजिद खान है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, ये सारे बच्चे थे जिन्होंने 1 बाय 1 करके अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन हम लोगों के सामने पेश किया। अब इसके बाद ख़ातीन की बारी आती है कि वो उनको जिस टॉपिक पर उन्वान दिया गया है एक एक करके हर शख्स अपना उन्वान पेश करे। अब मैं साजिद भाई को इस शेर के साथ दावत स्टेज देता हूँ कि अहले महफिल मुंतज़िर हैं देर से आली वक़ार। अहले महफिल मुंतज़िर हैं देर से आली वक़ार। आपके पिंदो नुसालिह का है उन्हें इंतज़ार। साजिद भाई तशरीफ लें। हर साल ये प्रोग्राम होता है। पिछले साल से इसकी शुरुआत हुई है और इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो ये है कि बच्चों के अंदर जो छुपी सलाहियतें हैं उन सलाहियतों को उजागर किया जाए। आप सबको पता है कि बच्चे मुख्तलिफ सलाहियतों के मालिक होते हैं। एक बच्चे के अंदर कम से कम 7, 8, 9 तरह की ज़हारत होती है जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस। कई तरह की इंटेलिजेंस होती है। कुछ बच्चों के अंदर लॉजिकल होती है, कुछ बच्चों के अंदर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है, कुछ बच्चों के अंदर इंटरपर्सनल होती है, कुछ बच्चे इंट्रापर्सनल होती है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि बच्चे बोल नहीं पाते हैं, वो जो चाहते हैं बोलना वो बोल नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और फील्ड में अच्छे नहीं हैं, वो किसी और फील्ड में अच्छे हो सकते हैं। इसीलिए मौजूदा दौर में यह कहा गया है कि आप बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चे के अंदर कौन सी सलाहियत मौजूद है। अगर एक बच्चा याद नहीं कर पाता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कैलकुलेट भी नहीं कर पाएगा। अगर एक बच्चा किसी तरीके से सुना नहीं पाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पर्सनालिटी किसी और फील्ड में उजागर नहीं हो सकती है। एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट माना जाता है, उसका नाम है एरिक एरिक्सन। वो ये कहता है कि अगर बच्चों की शुरू में तरबियत ना की जाए, यानी जैसे जैसे उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, अगर आप उस तरीके से उसकी
तरबियत नहीं कर पाए, उसको वो माहौल नहीं दे पाए, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो सलाहियत फिर मर जाती है। फिर उसने कहा कि जिनको हम सब शिकार हैं, फिर वो कहते हैं जब 17-18 साल के बच्चे होते हैं, 19 साल के बच्चे होते हैं, वहां से वो अपनी सलाहियतों को पहचान नहीं पाते, वहां से वो करते हैं मल्टीपल रोल अदा करने लगते हैं। और मल्टीपल रोल जब वो अदा करते हैं तो होता क्या है, कभी वो लगता है कि शायद मैं तालीम में सक्सेस जाऊं, फिर वो कभी लगता है कि चूंकि नौजवानी का जमाना है, उसके ज़हन में बहुत ख्यालात है, फिर वो कभी लगता है कि मैं शायद बिजनेस में कामयाब हो जाऊं, फिर वो कभी लगता है कि मैं खेतों में कामयाब हो सकता हूं। तो वो कहता है कि वो मल्टीपल रोल अदा करता है, और इसी सलाहियतों के दौरान कभी इसमें लगाता है, कभी इसमें लगाता है, कभी इसमें लगाता है, और उसे पता नहीं चल पाता कि एक्चुअल मेरे अंदर कौन सी सलाहियत थी। और जब वो जान नहीं पाता है तो वो फिर ऐसे ऐसे रोल अदा करता है और उसी में उसके वक्त गुजर जाते हैं। तो ये घर में, मैं ये बातें इसलिए बताया हूं कि घर में इसलिए ये प्रोग्राम हो रहा है कि हम बच्चों को समझने की कोशिश करें कि बच्चे के अंदर कौन सी सलाहियतें हैं, जबकि ये बच्चे हमारे लिए, हमारे नाम के लिए, हमारी जिंदगी के लिए हमारा सब कुछ सरमाया है। कहा जाता है कि बच्चे की तरबियत अगर अच्छी हुई तो बाप की जो सरमाया है उस सरमाया को बच्चे बहुत आगे तक बढ़ाएंगे। लेकिन अगर बच्चों की तरबियत नहीं हो पाई और हमने उसमें ढिलाई की तो हो सकता है कि बाप का सारा बनाया हुआ सरमाया वो चंद दिनों में बिखेर दे। तो इसलिए ये जो कोशिशें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि माशाल्लाह हमारे घर में जो बच्चे हैं ज़हानत के एतबार से बड़े अच्छे हैं। तो कोशिश ये करें कि हमारे बच्चे जो है उनकी सलाहियतें मरने न पाए, ये सलाहियतें उजागर हो और ये अपनी फील्ड में जाकर बहुत नाम रोशन करें, बहुत नाम रोशन करें। और इस घर का जो एक तालीमी निज़ाम था या तालीमी या दीनदाराना जो माहौल है, इस माहौल को आप लोग आगे बढ़ाएं। तो कोशिश करें कि हम अपने वक्त को अपने बच्चों पर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। ले गया जानो दिल जिस्म से खींच कर, ले गया जानो दिल जिस्म से खींच कर, हाँ मगर रूह को ताजगी ले गया। माशाअल्लाह, ये थे साजिद भाई जिन्होंने अपनी बात नहायत ही शानदार तरीके से हम लोगों के सामने पेश की। अब ये जो मुशायरा है, ये जो प्रोग्राम है, बिल्कुल इख्तिताम पर है। सिर्फ हमारे बड़े भाई बचे हुए हैं, तो मैं हामिद भाई को इस शेर से दावत स्टेज देता हूँ कि मुस्तरिब हैं पतंगे सरे अंजुमन, मुस्तरिब हैं पतंगे सरे अंजुमन, एक शमा चाहते हैं सुकून के लिए। हामिद भाई से दरख्वास्त है कि बराए करम आप तशरीफ़ लाएं। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं तमाम हजरात को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा। और जैसा कभी मौलाना वाहिद साहब ने भी कहा, मौलाना साजिद साहब ने कहा कि किसी की सक्सेस के पीछे अगर आप देखिए बड़े बड़े उलमा जितने हैं, इमाम शाफई या इमाम बुखारी, उनके पीछे देखिए माओ का रोल बहुत बड़ा है। तो माएँ अगर चाहें तो यकीनन इन्हें मोटिवेशन देकर और इन्हें इनकी हिम्मत अफजाई करके इन्हें कामयाब कर सकती हैं, इन्हें आगे बढ़ा सकती हैं। तो जहां तक बच्चों के प्रोग्राम से यकीनन उनका जो परफॉर्मेंस था, आप कह सकते हैं कोशिश तो उन्होंने की, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि काबिल तारीफ नहीं है। आज से इरादा करें, आज से कोशिश करें कि इंशाअल्लाह हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे कुछ ग्रेट और यूनिक बने। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और जो मेरे जहन में थी कि आखिरी अल्फाज मैं इसी के साथ ख़त्म करूँगा मौलाना वाहिद साहब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जितने भी मर्द हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह सभी मेहनत करते हैं और औरतें भी करती हैं, लेकिन होता है ना कोई इसमें खास होता है। जब मौलाना वाहिद साहब आते हैं तो घर का माहौल ही चेंज हो जाता है, बच्चे भी चेंज हो जाते हैं, कि वो जिस तरीके से गौर व फिक्र करते हैं बच्चों के बारे में, तो वो चीज़ें सबके अंदर नहीं है। और यकीन मानिए कि कोई भी तंजीम कामयाब होती है, कोई भी मदरसा कामयाब होता है, कोई भी कौम कामयाब होती है, उसमें चंद ही लोग होते हैं। अब देखिए, साहबा 1.25 लाख थे, लेकिन जिनका नाम आता है वो टॉप 10 होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं या 4 ही होते हैं 1.25 लाख में। तो कोई 1-2 ही होगा। तो औरतों से मैं कहना चाहूंगा कि आप ये ना सोचें कि मैं क्यों करूं जब वो नहीं करती हैं, वो नहीं करती तो मैं करूं। ये अल्लाह सबको वो सलाहियत नहीं देता, सबके अंदर वो सलाहियत नहीं होती है। तो जिसके अंदर ये सलाहियत है, जो कर सकता है और बच्चों के लिए बेहतरी कर सकता है, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप किसी से ये ना सोचें कि वो करेगी तो मैं करूंगी। ये ना सोच के ये करें कि सारे बच्चों की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, इंशाअल्लाह मैं इस जिम्मेदारी को
अदा करूंगी। तो करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरा सानी नहीं मिलता मुझे इस पुरबहारी में, तेरा सानी नहीं मिलता मुझे इस पुरबहारी में, चला आफताब बनकर इस बज़्म अल फारूक में। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह से मुकम्मल हो चुका है। अब कुछ इनामात आए हुए हैं और ये जो बच्चे हैं उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको नवाजा जाएगा। और इन इनामात में कोई पोजीशन तय नहीं हुई है कि किसको पोजीशन दी जाए किसको नहीं, बल्कि हर एक शख्स को 1 बाय 1 करके ये इनामात पेश किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं मुबश्शिर खान को बुलाता हूँ कि वाहिद भाई से दरख्वास्त है कि मुबश्शिर खान को इनामात से नवाजें। बस। अब इसके बाद मुजम्मिल से दरख्वास्त है कि मुजम्मिल तशरीफ़ लाएं और साजिद भाई से दरख्वास्त है कि इनामात से मुजम्मिल को नवाजें। अब इसके बाद जो अगले मुसाहिम है वो है अहमद। आबिद भाई से दरख्वास्त है कि अहमद को इनाम से नवाजें। इसके बाद जो अगली मुसाहिम है वो है सामिया खातून। सामिया से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं और वाहिद भाई से दरख्वास्त है कि सामिया को इनाम से नवाजें। खदीजा खातून से दरख्वास्त है कि खदीजा खातून तशरीफ़ लाएं और हामिद भाई से गुजारिश करता हूँ कि खदीजा को इनाम से नवाजें। अब इसके बाद सूफिया से गुजारिश है कि सूफिया तशरीफ़ लाएं और साजिद भाई से दरख्वास्त है कि साजिद भाई सूफिया को इनाम से नवाजें। मोहम्मद बचे हैं ना। अब अगले जो मुसाहिम है वो है मोहम्मद खान। मोहम्मद खान से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं और इनको इनामात से मैं ही नवाजूंगा। इसके बाद जो अगले मुसाहिम है वो हाजिरा। हामिद भाई से दरख्वास्त है कि हाजिरा को इनाम से नवाजें। बाद अब्दुर्रहमान और साजिद भाई से दरख्वास्त है कि अब्दुर्रहमान को इनाम से नवाजें। ऐसा आ जाओ। आबिद भाई से दरख्वास्त है कि आयजा को इनाम से नवाजें।